students, how are you? I hope you all are good. So today we are going to start our new chapter which name is The Most Intelligent Prince Second. So let's begin. Next morning the king came to know about the incident and sent for Shankar. He went to the king and was received by him very hospitably and appreciated for his strength and courage. He married his daughter Sumitra, a jewel of his kingdom, to him as a reward for killing the demon. She was an embodiment of vigorous physical health and beauty. She looked as fresh and lovely as a summer morning. She had rosy cheeks and big, beautiful, sparkling eyes. Her hair were long and dangling. She was dressed fashionably in a beautiful sari and bodice. The couple was very happy in each other's company. Shankar left his wife there and proceeded on to search for articles required for his father. All of a sudden, he came across a swarm of sparrows, about 100,000 in numbers, eating rice. He did not think it proper to disturb the sparrows, and he took another path, thus travelling at a distance. Upon this, one of the sparrows came to him and told him that they were all very much obliged to him for his kindness, and he should remember them if he needed their services. They would come to him as soon as possible. The prince thanked them and proceeded on his way. So बच्चे स्टोरी स्टार्ट होती है नेक्स्ट मॉर्निंग से, है ना। उसने डेमन को मार दिया था, किसने? शंकर ने। सो उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में ही किंग कहाँ पर आता है? वहाँ पर राजा के पास, ठीक है। जैसे ही राजा को सारी चीज़ें पता चलती है कि उसने डेमन को मारा है, तो राजा किंग जो होता है वो उसको बहुत स्ट्रेंथ और करेज के लिए काफ़ी अप्रिशिएट करता है, ठीक है, और उसकी काफ़ी हॉस्पिटलिटी करता है। देन उसको क्या बोलता है कि मेरी जो डॉटर है सुमित्रा, ठीक है, ज्वेल ऑफ द किंगडम, वो क्या है? ज्वेल ऑफ द किंगडम है, और मैं क्या चाहता हूँ? रिवॉर्ड फॉर किलिंग द डेमन, तुम्हें रिवॉर्ड के रूप में उसको देना चाहता हूँ। देन शी वॉज एन ऑब्डिमेंट ऑफ विगियस फिजिकल हेल्थ एंड ब्यूटी, तो उसके बताते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, प्रेज करते हैं कि वो कैसी लुक लाइक थी, है ना। सो कैसी दिखती थी? शी हैड रोजी चेक्स, बिग ब्यूटीफुल स्पार्कलिंग आइज, हर हेयर वर लॉन्ग एंड डैंगलिंग, एंड शी वॉज ड्रेस्ड फैशनेबली, और काफ़ी ब्यूटीफुल नजर आती थी। जो कपल थे वॉज वेरी हैप्पी इन ईच अदर्स कंपनी। सो शंकर लेफ्ट हिज वाइफ देयर, और शंकर ने क्या किया? क्योंकि उसको तो क्या करना था? आर्टिकल्स कलेक्ट करने थे अपने फादर्स के लिए। सो वो क्या करता है? शंकर लेफ्ट हिज वाइफ देयर, और अपना जो सर्चिंग का वर्क है उसके लिए जो रिक्वायरेबल था फॉर हिज फादर, नेक्स्ट स्टेप लेता है, मूव ऑन। सो ऑल ऑफ ए सडन ही केम अक्रॉस अ स्वाम, तो क्या हुआ? अचानक से जैसे वो क्रॉस कर रहा था, अ स्वाम ऑफ स्पैरोज, क्या कर रहे थे? 100,000 इन नंबर, ईटिंग राइस। लेकिन उसने क्या सोचा? उसने सोचा इनको डिस्टर्ब करना सही नहीं है, क्योंकि स्पैरोज जो बैठे हैं वो पाथ में, उनके रास्ते में आना, मुझे ट्रैवल करना इज नॉट गुड। सो अपॉन दिस वन ऑफ द स्पैरोज केम टू हिम एंड टोल्ड हिम दे वर ऑल वेरी मच ऑबिलाइज्ड टू हिम, तो क्या बोलती हैं कि हम आपके लिए बहुत ऑबिलाइज्ड हैं आपकी काइंडनेस को लेकर। सो कभी भी अगर हमारी जरूरत पड़ेगी तो प्लीज आप हमें बताना। द प्रिंस थैंक देम एंड प्रोसीडेड ऑन हिज वे। ही रीच्ड अ टाउन वेयर ही हर्ड फ्रॉम द पीपल दैट द किंग वुड मैरी हिज ब्यूटीफुल। देन वो कहाँ पे पहुंचता है? शंकर टाउन के अंदर, और उसने सुनता है लोगों से कि जो किंग है वुड मैरी हिज ब्यूटीफुल daughter Padmavati to one who would husk 10 modes of paddy with his fingers in a night without the help of any tools. And in case of failure to do so, he was to be put to death. The princess, being a rare beauty on the earth, a treasure of innumerable good virtues. Several princes tried to experiment, but unfortunately all failed. Shankar, going up to the king and told him his intention of winning the hand of his daughter. The king gladly showed him the place enclosed by a very high wall. He got the paddy placed there and guarded for the night, as it was very dark. It was midnight when he remembered the sparrows, who came to him within an hour and husked the paddy for him before 7 a.m. Then they went away. The king came there after a few minutes and was very pleased to find the work completed to his satisfaction. So जैसे ही जो टाउन में आता है कौन? शंकर। सो वो देखता है कि जो किंग है वो अपनी पद्मावती डॉटर की शादी करना चाहता है, लेकिन वो ऐसे इंसान को या ऐसे किंग को चूज करना चाहता है अपनी डॉटर के लिए जो क्या करेगा? वन हु वुड हस्क 10 मोल्ड्स ऑफ पैडी, अपने हाथ में रखेगा, अपनी फिंगर्स में,
और क्या करेगा, पूरी नाइट में, अ नाइट विदाउट द हेल्प ऑफ एनी टूल, उसको ऐसे ही रखना है। और जो हस्क होते हैं, मतलब जो स्वाम होंगे या जो बर्ड्स होंगे, उसको कलेक्ट कर कर लेकर जाएंगे। सो प्रिंसेस जो है उसको ये सारी चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है। और प्रिंस भी होते हैं बच्चे, उन्होंने ट्राई किया होता है इन चीज़ों को, लेकिन वो सक्सीड नहीं होते, फेलियर हो जाते हैं इस काम में। सो ये सारा शंकर को जब पता चलता है, वो राजा के पास आता है और क्या बोलता है कि वो चाहता है विनिंग द हैंड ऑफ हिज डॉटर। सो किंग जो ग्लैडली शॉर्ट करता है और वो बताता है कि ये मेरा जो है शर्त है, या ये बैट मैंने रखी हुई है, इस तरह से अगर आप इसको जीतेंगे तभी मैं अपनी डॉटर का हाथ आपके हाथ में दे सकता हूँ। देन you got married with my daughter. Then it was midnight when he remembered the sparrows. अब क्या करता है वो राजा, वही चीज़ें बताता है उसको कि क्या करना है। पैडी placed there and guarded for the night as it was very dark. उसके बाद मिडनाइट में तो उसको याद आती है, कौन, शंकर को याद आ जाती है सारी स्पैरोज, जो उसने रास्ता पार नहीं किया था, तो स्पैरोज याद आती हैं और वो स्पैरोज सभी आ जाती हैं और विद इन एन आवर के अंदर वो हस्क पैडी, ठीक है, बिफोर 7 AM ही उसको फिनिश कर देती हैं। किंग है वहां पर आता है, केम देयर आफ्टर अ फ्यू मिनट्स एंड वाज वेरी प्लीज्ड टू फाइंड द वर्क कंप्लीटेड विद हिज सेटिस्फेक्शन बिफोर 7 AM, है ना, 7 AM से पहले ही सारा पैडी जो है वो हस्क किया जाता है बाय द स्वान के थ्रू, और राजा है वो काफी खुश हो जाता है विद सेटिस्फेक्शन। ही टुक शंकर विद हिम टू द प्लेस and announced his bravery in the court. He married Princess Padmavati to Shankar with great pomp and splendor. He gave him a very rich dowry. Shankar lived with his wife and relatives for some time. He often called his wife Nightingale when he heard her singing sweetly. Amidst the happy and lovely company of his relatives, he did not forget his object. He requested his wife to stay with her father until he returned from his long journey. He left the place and proceeded onwards. So उसके बाद शंकर को वहाँ पर लेके आते हैं पैलेस के अंदर, जो किंग होते हैं, और वो अनाउंस करते हैं his bravery in the court, और he married, और वो क्या कर देते हैं, he married प्रिंसेस पद्मावती को शंकर के साथ with great pomp and splendor, ठीक है, उनकी शादी कर देते हैं और एक रिच डॉरी उनको देते हैं, ठीक है। और शंकर हैप्पीली अपनी वाइफ के साथ और रिलेटिव्स के साथ कुछ टाइम के लिए स्पेंड करता है, वहाँ पर रहता है, और वो अपनी वाइफ को क्या बोलता है, नाइटिंगेल, क्योंकि उसने उसकी जो मधुर स्वीट सिंगिंग थी वो सुनी थी। देन amidst द हैप्पी एंड लवली कंपनी ऑफ हिज रिलेटिव्स ही डिड नॉट फॉरगेट हिज ऑब्जेक्ट, लेकिन वो भूला नहीं था, उसको क्या आर्टिकल्स कलेक्ट करने थे ना बच्चे, तो वो उन चीज़ों को भूला नहीं था। देन वो अपनी वाइफ को रिक्वेस्ट करता है कि स्टे विद हर फादर until he returned from his long journey. Then वो क्या करता है, he left the place and proceeded onwards. After a long and tiring journey, he reached a beautiful place where a saint was sitting in deep meditation. Shankar sat near him and fell on his feet as soon as he opened his eyes. The saint told him to ask for a boon. Twice Shankar replied that he had everything with him by his grace, but the third time he told the saint his object and asked him where he should go for smiling flowers and the weeping pearls and how he would get them. The saint told Shankar that it was extremely difficult for him to get the articles, but the latter insisted upon getting the required information. Finally, the saint told him the way to the place where he could get both the articles. He also told that it was guarded by innumerable and fearful birds and animals, and he might be devoured by them. On his way, he should find crows, serpents, monkeys, bears, and lions respectively. If by good luck he should escape, he would come to his destination, where he would find a beautiful virgin named Draupadi, whose tears were transformed into pearls and whose laughter proceeded flowers. She kept for 6 months and stayed awake for the rest of the time. In either case, he would find his articles near her in large numbers and he could take them to his father. Like a brave man, he did not lose heart. So उसके बाद क्या होता है बच्चे, आफ्टर लॉन्ग टायरिंग जर्नी के बाद वो कहाँ पे पहुँचते हैं, ब्यूटीफुल प्लेस पर पहुँचते हैं जहाँ पर सेंट बैठे होते हैं डीप मेडिटेशन में, और शंकर वहाँ पर बैठ जाते हैं और फेल ऑन हिज फीट, और क्या बोलते हैं, ही ओपन, जैसे ही वो अपनी आंखों को खोलते हैं तो सेंट बोलते हैं टोल्ड हिम टू आस्क फॉर अ बून, लेकिन शंकर को तो रिप्लाई चाहिए था, तो शंकर रिप्लाई करता है एवरीथिंग विद हिम एंड बाय ग्रेस, है ना, बाय हिज ग्रेस मेरे पास सब कुछ है. बाय द थर्ड टाइम ही टोल्ड द सेंट हिज ऑब्जेक्ट एंड आस्क्ड हिम
वेयर ही शुड गो फॉर स्माइलिंग फ्लावर्स एंड विपिंग पर्ल्स के लिए उसको कहाँ पर जाना चाहिए. सो सेंट उसको बताते हैं, ठीक है, शंकर को, इट वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है इनको लेना, इन आर्टिकल्स को कलेक्ट करना इज सो डिफिकल्ट. अगर वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर रास्ते में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, काफ़ी डेंजरस चीज़ें मिलेंगी जिनके अंदर बहुत सारे फियरफुल बर्ड्स होंगे, एनिमल्स होंगे, क्रोज, सरपेंट्स, मंकीज, बियर्स एंड लायंस भी होंगे, ठीक है, वो काफ़ी कैसे डेंजरस होते हैं. तो बाय गुड लक ही शुड एस्केप, अगर बाय गुड लक आप बच भी जाते हो देन आपको क्या करना पड़ेगा, ही वुड कम टू हिज डेस्टिनेशन. तो कहाँ पहुँच जाओगे आप, अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच जाओगे जहाँ पर आपको मिलेगी एक ब्यूटीफुल वर्जिन नेम द्रौपदी, ठीक है, जिनका द्रौपदी नाम होगा. और वो क्या करती हैं, उनके जो टीयर्स हैं, आंसू हैं बच्चे, वो ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं इनटू पर्ल्स के अंदर, और जो लाफ्टर है, उनकी हंसी है, वो प्रोसीड करती है फ्लावर्स को. और शी केप्ट फॉर 6 months एंड स्टेड अवेक फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम. In either case, he would find his articles near her in large numbers. He could take them to his father. अगर वो ले पाएंगे तो वहाँ से उनको ले सकते हैं. Like a brave man, he did not lose heart. लेकिन brave man की तरह शंकर ने अपना heart lose नहीं किया. Where there is a will, there is a way. He took with him bread, laissez, whey, gram and meat and marched to his destination. To his surprise, he found all those birds and animals on his way. So, जहाँ पर विल होती है बच्चे वहीं से रास्ते खुल जाते हैं. ओके, सो यहाँ पर क्या किया उसने, शंकर ने अपने साथ कैरी किया ब्रेड, लेसे, वे, ग्राम एंड मीट को, ठीक है, और मार्च करने लग गए टू हिज डेस्टिनेशन. देन सरप्राइजिंगली ही फाउंड ऑल दोज बर्ड्स एंड एनिमल्स ऑन हिज वे. He gave bread to crows, whey to serpents, gram to monkey and meat to bears and lions. He always made his escape though narrowly when they were busy enjoying their food. तो सबको दे दिया और वो क्या कर रहे थे सब, enjoying their food. He reached the palace and safely and found the virgin sleeping peacefully. He found that she was a beautiful and took her for a fairy of heaven. Feeling charmed by her beauty, शंकर was keen to marry द्रौपदी. तो अब शंकर उसको देख रहा था, वो सो रही थी, ठीक है, और वो कैसी लग रही थी, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी. तो उसके चार्म से काफ़ी इम्प्रेस हो गया कौन, शंकर, और वो क्या चाहता था अभी, शंकर was keen to marry द्रौपदी. Accordingly, he had the marriage ceremony performed on his own. He tied a letter to her wrist, wherein he wrote that he came to her and married her. On waking up, she should come to him at the written addresses. He took both the articles, made his escape from the fearful birds and animals as he had done during his onward journey and went back home. He reached home quite safe. He placed the flowers and pearls on the king's table. तो अब क्या करता है वो, रानी को सोते हुए देखकर काफ़ी खुश हो जाता है, काफ़ी इंप्रेस हो जाता है, उससे शादी भी करना चाहता है. देन अब वो क्या करता है, उसके रिस्ट पर एक लेटर को राइट करता है बच्चे, उसमें एड्रेस राइट डाउन करता है, ठीक है, और लिख देता है अपना प्रॉपर एड्रेस, अगर वो उससे शादी करना चाहती है तो वो वहाँ पर आ जाए. सो द किंग अब क्या करता है, वहाँ से पर्ल्स को लेता है और जो चीज़ें फ्लावर्स हैं, पर्ल्स हैं, उनको कलेक्ट करता है और आ जाता है वापस घर पर. देन ही प्लेस द फ्लावर्स एंड पर्ल्स ऑन द किंग्स टेबल, और किंग की टेबल पर देन ही प्लेस्ड. द किंग enquired of his 6 sons who had brought them. Each tried his level best to convince him that he had brought them. One said that he placed them on his table, while another said that he gave the money to one of his very reliable servants who had brought them, and so on and so forth. The king smiled at her assertions. At last, he told them that someone must have brought them, and it was immaterial to him as to who had done so. He wanted them and fortunately got what he wanted. He made a paste of them and applied to his body, and as if by miracles he was cured of his disease. तो इसके बाद जो किंग है वो इंक्वायर करता है अपने 6 सन्स से कि कौन इसको लेकर आया है. सो ईच ट्राइड टू हिज लेवल बेस्ट. तो सब क्या करते हैं, अपने आप को बेस्ट दिखाने की कोशिश करते हैं. सो किंग क्या करता है, उनको देखकर उसको बिलीव नहीं होता कि इनमें से किसी ने ये किया है. सो किंग स्माइल्स एट देयर असर्शन, और लास्ट में ही टोल्ड देम कि जिसने भी ये किया है, ब्रॉट देम, इट वॉज इमर्शियल, और वो कैसा है, काफ़ी इम्प्रेसिव है, जिसने बहादुरी से, करेज से ये काम किया है. सो फॉर्चुनेटली गॉट what he wanted, और जो वो चाहता है वो उसको मिलेगा.
सो उसके बाद जो पेस्ट होता है उसका पेस्ट बना के फ्लावर्स का, पल्स का, और अप्लाई कर दिया जाता है किंग की बॉडी पर, और जो डिसीज थी वो अब क्योर हो जाती है, मतलब ठीक हो जाती है। Shankar was very pleased to see his father cured, but he never went to him to tell him that he had brought them after undergoing great trouble and risk. लेकिन शंकर काफ़ी खुश था, काफ़ी प्लीज था to see his father cured, है ना, लेकिन वो उसके पास जाना नहीं चाहता था। He never went to him, लेकिन उसके पास गया नहीं और ना ही उनको बताना चाहता था कि undergoing great trouble and risk के बारे में। Then Drupadi got up at the appointed time and was surprised to find a letter tied to her wrist. She read it and was pleased to have such a brave man as her husband. She proceeded to see her husband with a large Rentian infantry and cavalry. She passed by the town where Padmavati lived. The guard inquired of her where she was going. When he found that she was the wife of Shankar, he requested her to stop for a while. He immediately informed the king about her. The king told her that Shankar married his daughter also and she should kindly take Padmavati with herself. She agreed and Padmavati accompanied Drupadi. They started onwards. They passed the town where Sumitra lived with her father. The guard asked them where they were going. They told him that they were going to Shankar, to whom they were married. He requested them to wait here for some time as he had to inform the king about them. The king came to them and told that they should take his daughter Sumitra as she too was married to him. They gladly agreed Sumitra to take with him. ओके उसके बाद जो द्रौपदी होती है बच्चे, वो गॉट अप, उठती है और उस लेटर को देखती है जो टाइड किया गया था टू हर रेस्ट। उसको रीड आउट करते हैं, उसको काफ़ी प्लीज फील होता है, सच अ ब्रेव मैन एज हर हस्बैंड, और वो प्रोसीड करती है टू सी हर हस्बैंड विद अ लार्ज रेंटियन इन्फेंट्री और कैवलरी के बेस पर। देन शी पास्ड बाय द टाउन वेयर पद्मावती लिव्ड। ठीक है, जब वो जारी होती है तो जहाँ पे पद्मावती रहती है, द गार्ड इंक्वायर्ड करते हैं कि आप कौन है और कहाँ जा रही हैं। सो वो देखती है व्हेन ही फाउंड दैट शी वॉज वाइफ ऑफ शंकर। ठीक है, वो कौन है, शंकर की वाइफ है। देन ही रिक्वेस्टेड हर टू स्टॉप फॉर अ वाइल। सो इमीडिएटली इन्फॉर्म किया जाता है किंग अबाउट हर। The king told her that Shankar married his daughter, also she should kindly take Padmavati. तो उसके बाद वो कहते हैं कि पद्मावती से उसने शादी की है। With herself, she agreed that Padmavati accompanied Drupadi. So वहाँ पर वो क्या करती है, पद्मावती द्रुपदी के साथ कंपनी करके उनके साथ चलती है। They started onwards and they passed the town Sumitra. जहाँ पे सुमित्रा रहती थी, अब वो उस टाउन को पास करती हुई जाती हैं, ठीक है, अपने फादर के साथ। गार्ड उससे पूछते हैं फिर वेयर दे वर गोइंग। दे टोल्ड हिम दैट दे वर गोइंग टू शंकर, टू हुम वेयर दे मैरिड, एंड दे रिक्वेस्टेड करते हैं टू वेट हेयर फॉर सम टाइम, तब तक वो राजा को इन्फॉर्म करेंगे। द किंग केम टू दैम एंड टोल्ड दैट दे शुड टेक हिज डॉटर सुमित्रा एज शी ट्रू वॉज मैरिड टू हिम। They gladly agreed Sumitra to take with him. They reached the city where Shankar lived. They encamped outside the city, a few miles from it. They spread a cloth on the road and decorated it tastefully. They sent a message to the king that they were his son's wives and he should send Shankar there to take them with him. The king asked his sons to go to them whom they were married. First of all, one prince went to them. When he found that the road was decorated, he got down from the horse and went to receive them on foot, did not walk on the sheets of. So उसके बाद क्या होता है बच्चे, जो पहुंच जाते हैं सिटी में, ठीक है, ताकि शंकर जहाँ पे रहता था, और वो क्या करते हैं वहाँ पर आउटसाइड सिटी के अंदर ही जो फ्यू माइल्स फ्रॉम इट थी, स्प्रेड अ क्लॉथ ऑन द रोड एंड डेकोरेट कर देते हैं इट टेस्टफुली। और दे सेंट अ मैसेज, और एक मैसेज भेजते हैं राजा के पास। दे वर हिज सन्स वाइफ्स, और वो कौन है, वो सबकी सब सन्स की वाइफ हैं, ठीक है, उनके सन की वाइफ हैं। सो राजा क्या करता है, राजा आस्क्ड हिज सन्स टू गो टू देम, और बोलता है कि तुम वहाँ जाओ और वो तुम्हारी वाइफ्स हैं वहाँ पर। सो हुम दे वर मैरिड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन जाता है, वन प्रिंस वेंट टू देम, एक प्रिंस वहाँ पर जाता है। व्हेन ही फाउंड दैट द रोड वाज डेकोरेटेड, तो उसको क्या मिलता है, रोड वाज डेकोरेटेड, एंड ही गॉट डाउन फ्रॉम द हॉर्सेज, वेंट टू रिसीव देम ऑन फुट, डिड नॉट वॉक ऑन द शीट्स ऑफ। सो क्या करता है, रोड पर और शीट पर चल ही नहीं पाता। देन क्लॉथ एज ही वॉज अफ्रेड ऑफ स्पॉइलिंग देम, उनको क्या लगता है कि जो क्लॉथ है उसको स्पॉइल कर देगा और अफ्रेड हो जाता है वो। देन द्रौपदी फाउंड आउट एट वंस दैट सच अ फूल कुड नॉट बी हर हस्बैंड।
she cut his nose and made him go back. One after another, all the 6 princes met the same fate. She again sent another message to the king that he should send for his son who married her, otherwise she would destroy the whole town by her miraculous power, as she could not tolerate this mockery any longer. So उसके बाद क्या करते हैं, द्रौपदी जो है वो फाउंड करती है कैसे कि ये तो वो है ही नहीं, उसके हस्बैंड नहीं हो सकते, क्योंकि और फिर वो क्या कर देती है, उसके नोज को कट कर देती है और उसको वापस भेज देती है। ठीक है, और अगेन किंग के पास मैसेज पहुंचाया जाता है कि जो मेन किंग है, ठीक है ना, जैसे जो उनका हस्बैंड है उसको वहां पर भेजा जाए। लेकिन वो क्या करता है, अपने 6 प्रिंसेस से बात करता है, मिलते हैं, लेकिन वो तो होते ही नहीं है। तो उसके बाद वो वाइफ्स क्या बोलती हैं कि या तो उनको भेजा जाए उनके पास, नहीं तो वो क्या कर देंगे, होल टाउन को डिस्ट्रॉय कर देंगे बाय हर मिरेकल्स पावर, एंड शी कुड नॉट टॉलरेट दिस मॉकरी एनी लॉन्गर, और ज़्यादा देर तक वो इसको सहन नहीं कर सकते। सो देयर अपॉन द किंग फेल्ट वेरी मिरेकल्स एंड कुड नॉट थिंक ऑफ एनी प्लान बाय विच ही कुड सेव हिमसेल्फ एंड हिज टाउन। ही थॉट दैट he had no 7th son. At last, after getting permission from his dear mother, Shankar went to the king and told him his history. Shankar told him that he was ready to do the needful if the king would give him 100 handsome soldiers in uniform who would ride with arms along with the best horses of the same color. He agreed and arranged accordingly. Shankar ordered his soldiers to follow him, galloping and tramples upon the decorations on the road and destroy everything in their march. With these instructions, he marched on to receive his wives. The soldiers obeyed Shankar and carried out his orders. So उसके बाद जो किंग होता है वो काफ़ी माइजरेबल फील करता है, बहुत दुख फील करता है बच्चे। क्यों? क्योंकि उसके तो पता था कि उसके कितने सन है, 6, ठीक है, 7th का तो पता ही नहीं था। अब उसको अपने टाउन की कैसे सेव कर सकता था वो। उसने क्या किया, उसके बाद शंकर को खुद रियलाइज हो गया और उसने अपनी मदर से परमिशन लेते हुए बोला कि मैं किंग को सारी चीज़ें बता देता हूँ। देन उसने सारी चीज़ें बताई, वो पूरा हिस्ट्री कंप्लीट उसको बताई। देन शंकर टोल्ड हिम दैट ही वॉज रेडी टू डू नीडफुल, है ना, सारी चीज़ें करने को तैयार है। लेकिन किंग से क्या मांगता है वो, किंग वुड गिव 100 handsome soldiers in uniform and who would ride with arms along with the best horses of the same color. So राजा क्या करता है, he agreed and arranged accordingly. शंकर ordered, अब शंकर ऑर्डर देता है सभी सोल्जर्स को टू फॉलो हिम, है ना, और फिर उसके बाद डेकोरेशंस ऑन द रोड एंड डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग इन देयर मार्च। सो विद दीज इंस्ट्रक्शंस के साथ ही मार्च्ड ऑन टू रिसीव हिज वाइफ्स, और सोल्जर्स ओबेड करते हैं शंकर को, देन वो अपनी वाइफ्स को ले जाता है। द्रौपदी recognized her brave husbands and fell at his feet, and Shankar received her affectionately. He brought all his 3 wives and his mother with him to the ling, with whom he lived peacefully and happily for a long time. The king true loved Shankar dearly, was always proud of him. So द्रौपदी जो recognize कर लेती है कि ये उसके husband है और काफ़ी क्या करती है, then fell at his feet, और उसके पैरों में गिर जाती है। Then Shankar received her affectionately and क्या करता है, उसको brought करता है अपनी 3 wives को and his mother को with him to ling, with whom he lived peacefully and happily for a long time. And the king too loved Shankar dearly and was always proud of him. So बच्चों, this is the end of the chapter. I hope you understood all the chapters. और आपको क्या करना है, इससे रिलेट करती हुई चैप्टर या एक्सरसाइज बच्चे डू योरसेल्फ।